Hello and welcome to this brand new day of learning. Today is day 3 and we are continuing with our journey. Two things that we are going to cover today. Number 1 is vocabulary, which is being discussed as we speak with you right now, and number 2 is articulation. Both the topics are important, and that is how we will cover our master speaker blueprint. Okay? Now, without wasting any time, let us begin and find out about vocabulary. So, why vocabulary? See, normally हम लोग शुरू करते हैं what is vocabulary, but I think now the time, the way we are living in is पहले ये तो find out करें हमारे लिए क्यों important है. Why is vocabulary important? So what's in it for me पहले cover करेंगे, and then I'll tell you what is vocabulary and also how to master it. Absolutely. ठीक है? चलिए शुरू करते हैं why vocabulary से. So why vocabulary? There are 4 main reasons that you require vocabulary. Number 1, reading. जी हाँ, reading. कभी ऐसा हुआ है that you're reading a newspaper or a book, or probably you're reading a column somewhere and you come across a word and you don't know what that means. आपके पास 2 choices होती हैं अब. पहली choice, you let the word block you and you close the book or the newspaper or the column that you're reading and say, you know what, chuck it, पता नहीं क्या लिखा है. Number 2 is you find out what that word means in a dictionary and you proceed. देखिए, अगर आप number 2 option choose करते हैं, which I am assuming and I know for a fact that most of us who are listening to this do that, then let me tell you a secret about vocabulary. The more hungry you are for vocabulary, the more you are going to enrich your vocabulary. जितनी आपको ज़्यादा भूख होगी vocabulary learn करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा आपकी vocabulary बढ़ेगी. Absolutely. Okay? So that's number 1. Why vocabulary? Because sometimes अगर आपको उस word का मतलब नहीं पता, तो आप वहीं रुक जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं. इसीलिए, और जितना आप बात उसको, उस वर्ड को समझेंगे, जितना यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, उतना ही इट विल एनकरेज यू टू रीड ऑन. जी हाँ, जहां आपको पता लग गया इस वर्ड का क्या मतलब है, देन इट विल प्रोपेल यू टू प्रोसीड फर्दर एंड कीप ऑन रीडिंग. ओके, ऑलराइट. नंबर 2 ऑप्शन है लिसनिंग. अब लिसनिंग कैसे? How does vocabulary, मतलब why should you have vocabulary to listen? Well, similar way. जैसा reading में था, कभी ऐसा हुआ है कि हम कोई मूवी देख रहे हो या हम कोई सीरियल देख रहे हो जहाँ पे एक वर्ड, इंग्लिश में ऑफ कोर्स, एक वर्ड ऐसा सुनाई दिया या लिखा या सब टाइटल्स में अगर हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो कि पता नहीं है इसका क्या मतलब है. नाउ अगेन सेम 2 choices, रीडिंग वाले जो मैंने आपको बताया था. Would you let it stop you from finding out this meaning? Or would you encourage yourself, motivate yourself to go look for the meaning? अगर आपके ऑप्शन नंबर 2 है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, because that is the only way you're going to help increase your vocabulary as well. But आपकी vocabulary की जो appetite है, like I told you, वो आप पे ही डिपेंड करेगा. तो जितनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी vocabulary भी enrich होगी. Okay. राइटिंग. थर्ड, वाई vocabulary? चलिए ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर आप लोग कहीं काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस या एंड यू राइटिंग एन ईमेल एंड यू नीड अ सेकेंड ओपिनियन, यू टेल योर फ्रेंड, यार एक बार ज़रा देख लेना मैंने मेल लिखा है, ठीक लिखा है कि नहीं, और यू नीड समवन एल्स टू राइट द मेल फॉर यू, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो मेल लिखने में, हुआ है ना, एंड देन यू कॉल अ फ्रेंड से, यार एक बार देख ले ज़रा इस बात को. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है. ओके, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो मेल लिख रहे होते हैं, वो मुझे ज़रूर दिखाते हैं कि यार एक बार ज़रा इसको देख लो यार कि ये ठीक लिखा है कि नहीं. बहुत सारे लोग जो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं वो भी मुझे को देते हैं कि यार देख लो एक बार ये ठीक लिखा है कि नहीं. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी ऐसा ही करता था. ठीक है, तो उसके 2 वजह होती हैं. एक तो यू नीड अ सेकेंड ओपिनियन, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है, पर मोर और लेस जो रियल बात होती है वो ये होती है दैट यू वांट समवन हु नोज, हु
is good with vocabulary to look at your email that you have sent और आपको बताए कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, कहीं ज़्यादा वर्डीनेस तो नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं मैंने ऐड कर दिए, एंड देन यू विल मेक इट क्रिस्प, है ना. तो ये इसीलिए होता है बिकॉज आपकी वोकैबुलरी वीक है, आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है और आप उसी से अपना काम चला रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट स्टक. ओके, नाउ लास्टली जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्पीकिंग. ये मेरे साथ बहुत बार होता था, तो मैं आपको बताता हूँ अपनी एग्जांपल से. कभी ऐसा हुआ है कि आप बात कर रहे हो किसी अपने दोस्त से या किसी सराउंडिंग में, किसी मीटिंग में या कहीं पार्टी में, और आप वर्ड भूल गए कि आगे क्या बोलना था. इट वॉज राइट देयर ऑन द टिप ऑफ योर टंग, बट अब नहीं आ रहा है ना. आप सोच रहे हैं यार क्या था वो, क्या था, क्या वर्ड था यार वो. The reason why that happens again is because of limited vocabulary. हमारे पास limited vocabulary है, इसीलिए हम उन्हीं words को ढूंढते और टटोलते रहते हैं जिनसे हम अपना normal काम चलाते हैं. If we have enriched memory, अगर हमारे पास enriched vocabulary, अगर हमारे पास बहुत सारे words हैं, it becomes that much easier to then talk to people. कभी ऐसा होता है ना कि कुछ word कहीं यूज़ करना था लेकिन गलत यूज़ कर दिया, और फिर आपको कोई करेक्ट करता है तो आप कहते हो हाँ 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 यार वही, मैं भी तो वही बोल रहा था, है ना, और आप उसको मजाक में लेके टाल देते हैं. दैट इज अ साइन ऑफ अ पुअर वोकैबुलरी. ये जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करे हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये सब पुअर वोकैबुलरी की वजह से होते हैं. इसीलिए यू नीड वोकैबुलरी, बिकॉज जितनी ज़्यादा बेटर वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा बेटर आप स्पीक करेंगे, उतनी ज़्यादा बेटर आप राइट करेंगे, उतनी ज़्यादा बेटर आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और उतनी ज़्यादा ही आपकी बेटर रीडिंग भी होगी. ठीक है, मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? ओके, गुड. लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस व्हाट विल बी लर्न टुडे. नाउ व्हाट वी लर्न टुडे इज नाउ द फर्स्ट वन. What is vocabulary? Understanding what vocabulary is. Okay. Point number 2. Mindset. How to shape our mindset to learn. ठीक है, ये एक अलग ही मुद्दा है, एक अलग ही सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ अस समटाइम्स हैवंट लर्न इज बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट एज वेल, एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल सो यू विल नो. ओके, और लास्टली, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई गेस फॉर ऑल ऑफ अस, इज step to master vocabulary. What are the steps that will help me master vocabulary? आज हम ये सब सीखेंगे. Are you excited about this? Are you excited? Good. Okay, so if you're excited, type it in the comment section below. Type in I am excited. Come on, pause this video and type in I am excited. Good, 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 good. I'm waiting. Keep typing, keep typing. I am excited. Good. Let's proceed further. And next जो आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ, और ये एक्टिविटी भी है. चलिए, अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी. जरा इस पिक्चर को देखिए, स्लाइड को देखिए जरा आप. ओके, एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज दिस वीडियो and write down in your own words. I want you to describe this slide to me. अपने words में describe this slide to me. Tell me what do you see or what do you feel. Pause this video and write your thoughts down. When you look at this picture, what happens? I'm going to wait for you. Go ahead, write it. Pause this video. Really, pause this video. Go ahead and write. I know कुछ थोड़ा difficult होगा, क्या लिखें इसके बारे में, पर लिखिए. This is a part of your assignment. Okay, it's a part of your assessment. Reason why I'm saying so is because इसके बाद जो मैं बोलूँगा, then it will make more sense, and then you would know where and what is your level. So then whatever that we are going to discuss will make more sense. ठीक है, चलिए. Okay, good, good. Thank you. Welcome back. Welcome back. Now, some of you would have written just few lines on it. There's a sun in the background, one bicycle, one road. Okay. Some of you would have probably written a little more than that, little more than 2-3 lines, probably a small little paragraph per se, 4-5 लाइनें और. And some of you, I
I'm assuming right now, would have actually penned down your thoughts, would have taken this picture, would have taken you down in your memory lane, and you would have probably penned it down in terms of where you used to go for bicycling with your dad or with someone. That is the basic difference between vocabulary, between किनको कितनी आती है. जिनको vocabulary अच्छी आती है उनको 2 सेकंड लगेंगे इस पिक्चर के बारे में लिखने में, देखने में, बात करने में. Like if you ask me, I'll look at it and say, oh, I remember the time when I was a little kid, I used to go for bicycling with my dad. I still remember those roads that he used to take me with, and the fact that he is behind my bicycle used to give me enough boost that I can do this. And one day I realized that he's not even holding my bicycle anymore, and that is the day he told me, you see how I'm doing this? You see how I'm doing this? Okay, I didn't prepare for this. You just are looking at this picture, I'm able to, because of my vocabulary, because मेरे पास जो शब्दकोश है मेरा वो बहुत वास्ट है, और मैं इसके साथ पैदा नहीं हुआ था. मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, और उसी मेहनत को लेके मैं आपके पास आया हूँ, उसी को बता रहा हूँ कि कैसे करना है. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं. अगेन, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं. और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, कीप मेकिंग नोट्स. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू नो व्हाट योर लेवल इज. नाउ दैट वी नो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वोकैब्युलरी इज. ठीक है, बेसिकली शब्दकोश है ना, कितने वर्ड्स आप जानते हैं उसके बारे में है. सो वोकैबुलरी इज अ सेट ऑफ फेमिलियर वर्ड्स इन पर्सनल लैंग्वेज. बट यहाँ 3 चीज़ें होती हैं. ओके, जब आप एक वर्ड को सुनते हैं, पहली चीज़ जो होती है वो आपको पता है कि ये वर्ड मुझे पता है, मैं यूज़ करता हूँ. सो दोज वर्ड्स यू डोंट रियली बॉदर टू मच एंड मेक नोट्स ऑफ इट. देन कम्स द सेकेंड वन, विच इज वर्ड्स दैट यू रिकग्नाइज बट यू डू नॉट यूज. तो आपको उसका मतलब पता है पर आपको ये नहीं पता, या आप यूज नहीं करते, या आपको प्रॉब्ली यूज करना नहीं आता, पर आपको पता है वो वर्ड आप रिकॉग्नाइज करते हो. मे बी शायद मतलब ना पता हो, पर एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज जरूर करते हो उस वर्ड को. और जो तीसरा है वो ये है कि आपने जो है वर्ड्स पढ़े हैं पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, कि मतलब आई कैन रीड दिस वर्ड पर पता नहीं क्या लिखा है, ये क्या मतलब है इसका पता नहीं. ठीक है, ये तीन चीजें हमारे साथ होती हैं. वर्ड्स जो हमारा हाउ डू वी लुक एट वोकैबुलरी, वर्ड्स दैट वी नो एंड यूज, वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज एंड डू नॉट यूज, एंड वर्ड्स दैट वी रीड बट डू नॉट रिकॉग्नाइज. और हमारा जो शब्दकोश बढ़ाएगा वो ये 2 चीज मिलके बढ़ाएंगे. वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज बट डू नॉट यूज, एक तो ये हमें स्टार्ट करना होगा, एंड द वर्ड्स दैट वी रीड बट डू नॉट रिकॉग्नाइज, ये हमें नोट करना होगा. ओके, कैसे करेंगे जानते हैं अगली स्लाइड्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं.